Okay, we are live. Okay, anybody there? Namaste. Just about to start today's live MG Live on Business. Oh, good to see you, Kishore. Namaste, Kishore. Namaste. You are one big time learner, Kishore. I always see you in all my webinars and my live sessions and Happy Minds. I always see you. Great. Okay. Chile. Namaste, everybody. Welcome to MG Live on Business. Like I shared with you last week, this is another channel of mine called MG on Business. And we thought of starting this channel purely with a business focus because every Saturday morning at 7, we have a session on life, which is called Happy Minds. And that has been happening for the last many, many years, almost 25 years. And that was more or less on the life side of life. And there were people who were asking us that would you like to share something on business. Even last Saturday we had a question on the business side, how do I take my turnover to the next orbit and things like that. तो हमने सोचा कि ये लाइफ बेस को लाइफ बेस रहने देंगे और बिजनेस बेस के लिए एक अलग से एक चालू करेंगे. So we thought, why not start on YouTube? So here we are for the second session on YouTube. So Varsha, namaste Varsha, good to have you here for MG Live. Vinod, namaste Vinod. Great, let people add on. I'm sure slowly and slowly traffic will also come on this channel. And if you're new and you're watching me, you want to watch me as I speak, I suggest that you like our channel so that you get the notifications at regular intervals about the videos which we will have here. So is channel ka focus rahega on the business side. I intend to have one live every week, plus a few more videos which I can post. I'm recording quite a few videos on the business side in terms of what's happening in the business world. Uske hum videos banayenge aur dalenge yahan par. So that's what the intent is. And if you like and you feel that this is helping you out, do share about our channel with people around. And I also intend to take some questions as we progress, as we go on. Questions from some of you in relation to business. अब यहाँ पर live based questions नहीं पूछना. मालूम पड़ता है कि live based sessions में you ask business questions, and on business sessions you ask live based questions. So ask questions on the business side and more so on the subject which I would be covering. So last week मैंने बात करी थी on a very important aspect of business side, which was on the people side of business, and today is also in continuation to the people side of business. So last week हमने बात करी थी कि when we talk about hiring team members or hiring employees, as you would say, तो challenges क्यों आ रहे हैं. And उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया था कि we are kind of unattractive as an organization, as an enterprise, as a company. हम कहीं जाने अनजाने में we have become unattractive. So when we say unattractive, it means somewhere the pull power is missing. The kind of people we want are not applying for jobs in our company. और उसका एक कारण था कि हम लोग अट्रैक्टिव क्यों नहीं बन पा रहे हैं. बिकॉज समवेयर हमारी जो समझ है लोगों के संदर्भ में इन रिलेशन टू पीपल, दैट इज प्री हिस्टोरिक, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस टाइम. सो हमने अपनी समझ लोगों के संदर्भ में बदली नहीं. एंड द लास्ट फ्यू इयर्स and more so the years that went by in the COVID and the pre-COVID, post-COVID, and that era, especially the era which we have had, which we saw the last few years. इस era में क्या हुआ है, जो जॉब सीकर्स हैं उनकी समझ उनके काम के बारे में काफी बदल गई है. उनकी समझ कि उनका काम उनकी लाइफ में क्या मायने रखता है वो काफी बदल गई है. सो जब एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वो समझ के साथ अलाइन नहीं करता, तो ही इज नॉट एबल टू
to bring that alignment in his communication. If he's not able to understand कि ये क्या बदलाव हुआ है, तो वो सही लोगों को attract नहीं कर पाता. So I had spoken about the reasons why people would join in the past, and I also spoke about now in today's scenario, what are new job seekers looking at in the prospective companies where they would like to invest their years, of their life working. तो आपने जिन लोगों ने देखा नहीं होगा, I would suggest that आप देखिए. There are 5 things which a prospective team member looks or is now looking in his company where he would like to work. तो वो आप वो देखिएगा. आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं and let's understand from the people side another beautiful aspect. जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि आपका सबसे बड़ा या what is the biggest asset of your company, when I ask people this very question, that what's your biggest asset? So a lot of times people they understand that if I'm talking about people, so they always say that people are the biggest asset. And then I listen to this answer and then I take a pause. And then there's a gentle smile on my face because that smile which says that this answer is not right. और फिर मैं जब चेहरे देखता हूँ लोगों के तो कहते हैं अरे ये तो आप ही ने सिखाया था that people are the biggest asset of your company. तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसको मान क्यों नहीं रहे? And then I give the answer, and I'm giving the answer to you, that people are not the biggest asset of your organization. They're not the biggest asset. The biggest asset of your organization are not people, but right people. Listen to me again. The biggest asset of your organization are not people, but actually you having right people. If you have right people with you, अगर आपके पास सही लोग हैं, then they are the biggest asset of your organization. If you don't have the right people with you, then they are a liability. वो asset नहीं होते, वो liability होते. तो आज उन्हीं के बारे में कुछ हम बात करेंगे, not from the asset and liability perspective, but from the perspective that as a leader आप हो, तो आपको people conscious होना बड़ा जरूरी है. You should be very clear-headed in relation to people, in respect to people. So ये सब्जेक्ट के साथ शुरू करें आज. चलो ग्रेट, जो भी है, we have people joining in slowly one by one. It's a new channel. We will have people coming in as time passes by. But अच्छा, कुछ लोगों का ना ऑडियंस में ये उनको लगता है यहाँ भी शायद शाम को मेडिटेशन होगा 10 मिनट का, उसके 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे. मालूम पड़ा 10 मिनट बाद तो अपना लाइफ खत्म हो गया, because it's not for 1 hour, it's maximum for around 25-30 minutes, and depends on how long we last with the question and answers. So with this clarity that wrong people are a liability and right people are assets, let's understand this very aspect कि as a leader, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में as an entrepreneur और as a leader आप हैं, तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है that you are clear-headed, you are kind of strong, and you stay strong in relation to people decisions. Now when I say strong in relation to people decisions, because लोगों के संदर्भ में क्या होता है, emotions play करते हैं. When you have somebody working with you for, let's say, for a year or 2 years, I'm not even talking about 10 years, जो आपके साथ कोई 6 महीना, साल भर, 2 साल रह लेता है, so it's a person staying with you, it's not a machine which is staying with you. So chances are very high that there is an emotional bond which is built, there is a human bond which is built, और normally क्या होता है, उस bond के चक्कर में हम clearly देख नहीं पाते situation को, या हम देखते हुए भी ना समझ बन जाते हैं, because it's a people decision which we have to take. तो लोग छोड़ो, और कभी कभी जो है हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं. It can be a non-living thing also. कोई गाड़ी है जिसको हम चला रहे हैं, and the time comes that we have to say goodbye to the car because we got to change the car. Then also people become emotional about that. तो जब किसी non-living thing को लेके emotional हो सकते हैं, तो लोगों के संदर्भ में तो लोग emotional हो ही सकते हैं. Emotional in the sense they're not strong enough to take a decision. They're not straightforward in taking a decision, and that's where many leaders they they don't stay loyal to the organization. They happen to become loyal to people in the company, or they happen to not be strong enough to take some people decisions. तो जितने आप लीडरशिप में आगे बढ़ते जाओगे,
उतना ही क्लियर हेडेड आपको रहना पड़ेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग पीपल बेस्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे. सो in a way where we say that when we say strong, it is not about आप बेरहम हो जाएं, आप रूथलेस हो जाएं. इट्स नॉट अबाउट दिस. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इतने नरम हो जाएं कि उस नरमी में आप अच्छे डिसीजन ले नहीं पा रहे. तो ये एक बड़ा बैलेंसिंग रोल है जो एक लीडर को प्ले करना पड़ेगा, दैट ही doesn't seem or he doesn't look like a बेरहम, a ruthless, a क्रूर लीडर के रूप में ना दिख रहा है, और वो इतना भी नरम नहीं होना चाहिए कि लोग उसको राइट पे ले जाएं और पीपल जस्ट वॉक ओवर हिम और पीपल मेक यूज ऑफ हिम और या लोग उसका फायदा उठाएं. तो ये बैलेंसिंग रोल एक लीडर को प्ले करना पड़ेगा, और वो बैलेंसिंग रोल प्ले करने के लिए एक लीडर को पीपल बेस्ड एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन होना पड़ेगा. So I'm going to share with you three decisions or three disciplines where a leader has to where a leader has to be clear about. तीन disciplines आपको लाने हैं people based. तो पहला डिसीजन और पहला डिसिप्लिन जो आपने पकड़ना है people based. When I say that it'll help you become clear headed and it will help you become strong. तो वो डिसिप्लिन क्या है? That discipline is that when it comes to hiring, जब आप हायर कर रहे हो, उस हायरिंग सिचुएशन में अगर क्या होता है ना, कभी कभी हमें लोग चाहिए होते हैं, तो हम कहते हैं हमें लोग चाहिए, तो हम अपनी प्लेसमेंट एजेंसी को बोल देते हैं वी नीड पीपल, वी पुट एन एड इन द सोशल मीडिया और ऑन द प्रिंट मीडिया, वी पुट आवर फीडर्स आउट कि हमें लोग चाहिए. तो जब डेस्पिरेशन होता है लोगों का, तो हम कहते हैं यार कोई भी आ जाए हम उसको रख लेंगे, एंड दैट्स वेयर वी मेक अ मिस्टेक. That's where we cause a lot of challenges for organization, because जब मैं लोगों से बात करता हूं कि आपका पेन एरिया क्या है, तो लोग बोलते हैं पेन एरिया इज पीपल, और जब मैं उनसे पूछता हूं आपका एसेट क्या है, तो बोलते हैं पीपल. तो अगर एसेट भी लोग हैं और पेन एरिया भी लोग हैं, तो कुछ तो गड़बड़ी हो रही है हमारे समझने में. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया स्टार्टिंग में, that people are not your assets, right people are assets, and wrong people are liability, and that's where the pain comes from. और ये पेन आता क्यों है? क्योंकि हायरिंग के समय जब हम डेस्परेट होते हैं कि हमें लोग चाहिए, तो हम कैसे भी लोग रख लेते हैं, कुछ भी करके लोग रख लेते हैं, एंड दैट्स वेयर आवर प्रॉब्लम्स स्टार्ट. तो पहला डिसिप्लिन आपके लिए है कि जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं और आपको डाउट आता है, दैट यू हैव अ डाउट इन योर माइंड, शुड आई हायर हिम और शुड आई नॉट हायर हिम. अगर डाउट आ गया, तो मेरा आपसे सजेशन है कि बी डिसिप्लिन्ड in this habit of not hiring. The moment you have a doubt, please don't hire. आप तभी हायर करो लोगों को जब आपको पूरा अंदर से विश्वास आ रहा है कि यार दिस इज द राइट हायर. आपको डाउट है, हायर मत करिए. मैं ये नहीं कर रहा उसको छोड़ दीजिए, उससे आप कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए. आई एम सेइंग यू एंगेज हिम मोर इन द प्री हायरिंग प्रोसेस टिल यू आर वेरी श्योर कि आपने इसको रखना है कि नहीं रखना. पहला डिसिप्लिन. ये डिसिप्लिन आपने लूज कर दिया, इस एरिया में आप इनडिसिप्लिन बन गए और आपने हायर कर लिया क्योंकि आपको जरूरत थी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपने इसको हायर करना है, लेकिन आपने हायर कर लिया. मेरी बात का विश्वास करिए, आपने अपने लिए फ्यूचर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का एक रास्ता बना लिया. एंड देन यू विल से दैट पीपल आर रियल प्रॉब्लम्स, पीपल आर पेन एरियाज. वो इसलिए हुआ पेन एरिया क्योंकि आपने एक गलत इंसान को हायर कर लिया, आपने एक ऐसे इंसान को हायर कर लिया जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था. Am I right or not? So, okay, namaste everybody. Those who have joined in late, I'm sure you have caught up with my earlier part, which I was speaking about. कुछ लोग तो 12 मिनट लेट आए ज्वाइन करें. Please be there in time, because when I say 7 o'clock I will be on live, then 7 o'clock I start, right? इधर से उधर हो जाए तो फिर मैं तो चालू करता ही हूँ सेशन. I've never started a session late in the history of my life. So, coming to the first discipline in relation to people, please, whenever you are in doubt, don't hire. Now, last few weeks, we have been on a hiring spree in terms of Chrysalis. Hiring spree means we have been on an interviewing spree. So I've been taking a lot of interviews. तो मेरे जो ह्यूमन एसेट की जो मेरी मैनेजर है पल्लवी, वो बोलती है सर आपने इतने इंटरव्यू लिया, आप किसको रखने वाले हो? मैं कहा आई विल नॉट टेक एनीबडी ऑन बोर्ड टिल आई एम 100% and 110% श्योर कि ये बच्चा, ये इंसान हमारे यहाँ अच्छा काम कर सकता है.
टिल आई एम नॉट श्योर मैं ऑन बोर्ड लूंगा नहीं, क्योंकि द मोमेंट यू टेक द पर्सन ऑन बोर्ड तो कहीं ना कहीं आपकी सर्च बंद हो जाती है, कहीं ना कहीं आप भी मेंटली रिलैक्स हो जाते हो, अच्छा ठीक है यार अभी आदमी आ गया है, इंसान आ गया है, नाउ यू विल स्टॉप हंटिंग, यू विल स्टॉप इन्वेस्टिंग टाइम इन इंटरव्यूइंग, एंड फिर आप उस इंसान पे टाइम देना चालू करते हो जिसको आपने ऑन बोर्ड ले लिया। अब उस पर आप टाइम देते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, उसको समझाते हो, इंडक्शन करते हो, एंड देन यू मेक हिम अंडरस्टैंड योर इंडस्ट्री, योर वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। मालूम पड़ा उसके समान समझाने में, सिखाने में, बताने में आपके 2-3 महीने निकल गए। 2-3 महीने में उसको रियलाइज होता है कि यार ये कंपनी मेरे लिए सही नहीं है, या तो यहाँ मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। 2-3 महीने में आपको समझ में आता है कि यार ये तो बंदा वैसा नहीं है जैसे मुझे लग रहा था होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, 2-3 महीने में आपका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा कम था वो और भी कम हो जाता है, लेकिन आप फिर भी कहते हो नहीं यार वी शुड वी शुड गिव चांस टू पीपल। ऐसे थोड़ी ना कोई 2-3 महीने में परफॉर्म करता है, ऐसे थोड़ी ना 2-3 महीने में कोई इंसान अपना हो जाता है। तो आप अपने आप को बहलाते हो, अपने आप को समझाते हो, और आप फिर 3 महीने और निकाल देते हो उसके साथ, और 3 महीने और माथापच्ची करते हो उसके साथ, वो भी आपके साथ जान लगा के सोचता है मैं भी करूं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आदमी खराब था, वो रॉन्ग पर्सन था, वो गलत इंसान था हमारे लिए। वो लाइफ में गलत नहीं था, वो हमारी कंपनी के लिए गलत था। तो मालूम पड़ता है 5-6 महीने निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद या तो वो नाराजगी से निकल जाता है, या आप उसको निकाल देते हो, या फिर उसको समझ में आता है ये कंपनी सही नहीं है, फिर एक दिन वो 7 तारीख की पगार लेने के बाद वो गायब हो जाता है आइटम, एंड दैट्स हाउ आपके 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने के साथ साथ बहुत पैसा टूट जाता है, एंड आपकी फिर वो कहानी शुरू होती है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, फिर ढूंढना आप चालू करते हो। एम आई राइट और नॉट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस, this is what happens when you hire without having the confidence of hiring that person. Till you are not confident, till you are not sure, मेरा सजेशन है प्लीज डोंट हायर। तो पहला डिसिप्लिन। अभी क्या होता है कि ना मुंह में पानी आ जाता है, यार इसको तो ले लेते हैं, कोई नहीं है इसको तो ले लेते हैं। लेने की बात नहीं है, आगे की प्रॉब्लम्स जो आप फेस करोगे बात उसकी है। So all those who have been listening to me, does this make sense to you? You can give me a comment on the comment section here if it made sense to you what I spoke. The first discipline of hiring, first discipline of the people side in terms of leadership, कि लीडर का एक पहला डिसिप्लिन क्या है कि आप जब डाउट में हैं हायरिंग के समय, बिल्कुल हायर मत करिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। Now, good to see you, Kulpreet. Kishore says, sir, in rural area we don't get options, so we choose from whatever we get. ये देखो, I'm talking from the perspective of Kishore. I'm talking from the perspective of the senior level, the mid level and above. Of course, at the shop floor level, people will not cause that much of a damage to the company in case they are not the right guys. Though we want the right guys there, right? But in that area, the shop floor area, you can put some time into training them, because it's kind of a mechanical drill of training people into an activity which they will keep on repeating every day. When it comes to management, when it comes to middle management and senior management, वहां पर एक रेपिटेटिव ड्रिल नहीं है, वहां पर बातें अलग है, वहां डायनेमिक्स अलग है, वहां पर गलत इंसान का रहने से डैमेज काफी बड़ा है, उसका नुकसान ज्यादा है। तो इसलिए वहां पर हमें रिग्रेस, वी हैव टू बी रिग्रेस इन आवर पीपल स्क्रीनिंग प्रोसेस, वी हैव टू बी डबली श्योर ऑफ द काइंड ऑफ पीपल वी आर गेटिंग ऑन बोर्ड। इसलिए ये डिसिप्लिन का होना बड़ा जरूरी है। आपका कहना सही है कि आप जिस एरिया में हैं, आपकी फैक्ट्रीज जहां पर हैं, it's a rural area, but that's where all factories are. All factories are in areas which is far away from the city. So maybe ये challenges है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। Now this can't be a reason that we are far away so we will take anybody on board. No. So now that's your challenge that you are far away, but आपको उसका solution आपके पास ये नहीं है कि आप कैसे भी लोगों को हायर करोगे। Yes, maybe somebody who is at a who is operating from a location which is kind of attractive for people. Yes, उसके मुकाबले आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी. Maybe you'll have to have some
attractions which are more than the attractions for somebody who's in a much better location. ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास excuse नहीं है that you will hire anybody on board. प्यास लगी तो कुआं खोदने का काम हो रहा है ऐसे. एब्सोल्युटली. तो ये यू सेड इट राइट प्रशांत, कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं, हम कब कुआं खोदते हैं जब हमें प्यास लगती है. एंड आई हैव बीन सेइंग इट टाइम एंड अगेन, यू गॉट टू बी रेडी, यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड. प्लीज डोंट डिग अ वेल व्हेन यू आर थर्स्टी, dig a well when you're not thirsty. When I say dig a well when you're not thirsty means have few CVs, have few people in your hand, even when you don't require them. हम लोग तो जैसे ही किसी को हायर कर लेते हैं, हम अपना सारा हायरिंग का प्रोसेस बंद करके ठंडे बस्ते में, वी पुट इन अ ट्रंक एंड वी काइंड ऑफ थ्रो द ट्रंक इनटू द सी, कि अभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है. वी स्टॉप ऑल आवर सर्चेस, वी बिकम पीपल ब्लाइंड. लोगों के संदर्भ में हम अंधे हो जाते हैं, फिर हमें लोग दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हो गया. अरे वो तो अभी आया नहीं, उसने तो अभी हाँ ही करी है आपको, अभी तो ऑफर लेटर को हाँ करिए. ऑफर लेटर लेके वो रात को जरा अंगड़ाई लेगा, ऑफर लेटर, आपका ऑफर लेटर लेके वो 10 कंपनियों में ऐसे घुमाएगा, देखो मुझे शोर रबर से ऑफर लेटर आया है, और फिर वो 10 कंपनियों से वो उनका ऑफर लेटर लेगा, और आप यहाँ खुश हो जाते हो कि देखो एक आदमी ने ऑफर लेटर ले लिया है. और मालूम पड़ता है उस चक्कर में एक हफ्ता निकल गया, और जिस दिन उसने ज्वाइन करना था उस दिन वो आता ही नहीं है, आपका फोन उठाता ही नहीं है, या उसका सुबह एक्सीडेंट हो जाता है कि सर मैं तो निकल रहा था आपके आने के लिए, और मेरी गाड़ी स्किड हो गई, स्लिप हो गई, एंड आई कांट कम. और आप फिर भी विश्वास करते हो कि वो आएगा. नहीं नहीं नहीं, वो आएगा, कल आएगा, परसों आएगा. सो प्लीज डोंट डिग अ वेल व्हेन यू आर थर्स्टी, dig a well when you're not thirsty. Start hunting for people even when you don't need people. You don't need people. So this is the first discipline, right? Second discipline which you need to be very disciplined about as an entrepreneur, as a leader. दूसरा discipline, when it comes to making a significant people change, जब एक लोगों के संदर्भ में एक चेंज वाला डिसीजन का मोमेंट आता है, प्लीज एक्ट. अगर आपके सामने एक नॉन परफॉर्मर का केस स्टडी आ गया और आपको लगता है यार अभी तो मुझे एक्ट करना चाहिए इस इंसान पे, एक्ट करने का मतलब हो सकता है दो तरह के एक्शंस हो सकते हैं. या तो उसको जिस काम पे रखा गया है उस काम से निकाल के किसी और काम पे डाल दो, सो यू चेंज हिज सीट, और यू आस्क हिम टू गो. या तो आप उसकी सीट बदल दोगे, या उसको आप अपनी गाड़ी से निकाल दोगे. आप कहोगे भाई मेरी गाड़ी से निकल जा, उतर जा, क्योंकि मेरी गाड़ी में अभी जो है तेरे लिए जगह नहीं है. या फिर तू इस गलत सीट में बैठा है, अरे तू तो कंडक्टर में बैठा हुआ है, तेरा काम तो ड्राइविंग का होना चाहिए. या तू तो कंडक्टर की सीट में बैठा हुआ है, नहीं नहीं तेरा काम तो क्लीनिंग का होना चाहिए. अगर ये डिसीजंस लेने हैं कि उसकी सीट बदलनी है या उसको गाड़ी से बाहर निकालना है, then please don't sit on that decision. Act fast. दूसरा डिसिप्लिन, किसी भी इंसान के प्रति जो डिसीजन लेना है कि उसको रखूं कि नहीं रखूं, उसको सीट चेंज करूं कि नहीं चेंज करूं, उसके ऊपर आप बैठिए मत. बी डिसिप्लिन इनफ टू एक्ट फास्ट. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लेके चलते रहते हो और बस ड्रैग करते हो, तो ना वो सुपर परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना ही उनको अच्छा लग रहा है, ना ही आपको अच्छा लग रहा है. ये आपकी कमजोरी है एज अ लीडर. इट इज योर वीकनेस दैट यू आर नॉट एबल टू टेक दैट टफ डिसीजन कि मैं उसको बोलूं यार आता बस झाला, हैंडशेक, इट्स इनफ. आप नहीं कह पा रहे हो क्योंकि आपका कहीं बॉन्ड हो गया उसके साथ. आपका एक ह्यूमन अप्रोच है, आप इंसान, आपको लगता है नहीं यार मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे उसको बोलूं. अरे कैसे बोलूं, कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी का पैसा जा रहा है महीने के महीने, कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, आपकी कमजोरी की वजह से आप उसको हटा नहीं पा रहे हो, कोई नया आदमी आ नहीं पा रहा है, वो नुकसान कर रहा है. दूसरा, वो इंसान भी तो ग्रो नहीं कर पा रहा है. पहला तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, नंबर 1. नंबर 2, वो इंसान भी तो ग्रो नहीं कर पा रहा है जिसको आपने रखा हुआ है. शायद किसी और कंपनी में या किसी और काम में वो अच्छा काम करेगा, लेकिन आपकी कमजोरी आपसे वो एक्शन नहीं लेने को लगा रही है. और तीसरा नुकसान होता है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको एक गलत इंसान के साथ काम करना पड़ता है. देयर राइट पीपल इन द कंपनी हु आर एडजस्टिंग विद द रॉन्ग गाय,
और इस गलत इंसान के परफॉर्मेंस से उनके परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ रहा है। शायद इसके नीचे कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन ये लीडर ही सही नहीं है। एंड आप इस इंसान पे आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो आप ये नीचे वालों के साथ भी तो आप जाति कर रहे हो, इनके साथ भी तो आप गलत काम कर रहे हो। सो ऑन 3 लेवल्स द कंपनी लूजेस, बिकॉज आप कमजोर हैं इन टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। द कंपनी लूजेस, द पर्सन हु हैज टू बी asked to leave, he loses, and the people who are working along with this person, they also lose, just because the boss was weak. So I'm saying, be a strong boss. और जब भी आपने लोगों के संदर्भ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, दो बातें ध्यान रखना इसमें। और whenever you have taken a decision in relation to people, that you have asked people to leave the organization, or you have asked them to change the profile of theirs because you felt that the person is good, शायद ये काम में अच्छा नहीं, इसको दूसरा काम देता हूं, तो अक्सर आपको, जब भी आपने ऐसे डिसीजन लिए हैं, तो अक्सर आपको अच्छे मन से याद नहीं किया गया है। और आप किसी को हटाते हो कंपनी से, थोड़ी ना वो आपको दुआ देके जाएगा, थोड़ी ना वो आपको कहेगा जुग जुग जियो, तेरा भला हो। वो बुरे मन से जाएगा, आपके बारे में शायद अच्छी बात नहीं भी करेगा, पॉसिबिलिटी है। और जब ऐसा होता है या ऐसा आपको लगता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, लीडर जो है अपनी सीट में लोगों की वाहवाही लेने के लिए नहीं बैठा है। लीडर अपनी सीट में बैठा हुआ है टू इंश्योर दैट द कंपनी प्रोग्रेसेस एट अ स्पीड इट शुड। लीडर इज सिटिंग इन द चेयर टू मेक श्योर कंपनी गोज वन लेवल अप, द कंपनी गोज टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। उसकी जिम्मेदारी हमारी है एज अ लीडर, उस गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। वी गॉट टू टेक इट टू द डेस्टिनेशन। उसके लिए मुझे कुछ सवारियां निकालनी पड़े तो निकालूंगा, लेकिन उन सवारियों को बुरा लग जाएगा इसलिए मैं नहीं निकालूंगा, और इसलिए पूरा रास्ता खराब कर दूंगा, इसलिए हमारी बस कहीं और चली जाएगी। ये क्या मतलब? सो फर्स्ट, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ प्लीजिंग गेम कि किसी को खुश करना है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑब्जेक्टिव, टू द डेस्टिनेशन विच इट वाज सेट फॉर। सेकंड थिंग, कि जब आप किसी को आप एक तो होता है कि भाई उसको लगता है कि यार ये मेरा, आपको लगता है कि ये मेरी बुराई करेगा, इसलिए मैं नहीं निकालता हूं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लॉयल्टी कंपनी के प्रति है, एंड द मोर लॉयल यू आर टुवर्ड्स द कंपनी, द मोर यू विल बी स्ट्रांग टू टेक पीपल डिसीजंस। यू गॉट टू बी लॉयल टुवर्ड्स द विजन ऑफ द कंपनी, एंड दैट लॉयल्टी विल गिव यू द स्ट्रेंथ। सो दो डिसिप्लिन आपको बताए मैंने। पहला, whenever you are in doubt, please stop hiring. Don't hire till you are doubly sure. Second, when it comes to a change which you need to make in terms of people side of business, please make a change. Act fast. अब ये भी हो सकता है दूसरा, कि आपने किसी को निकाल दिया और निकालने के बाद लगा यार शिट यार, इसको तो निकाल के मैंने गलती करी। तो आपने निकालने से पहले सोचना चाहिए कि जो मेरे निकालने के फैक्टर्स हैं वो मेरे लॉजिकल हैं कि नहीं है। बिकॉज अगेन इमोशंस कैन प्ले अ रोल देयर। यू गॉट टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाई यू आर आस्किंग टू लीव। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टन कहा सुनी किसी की। इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विद हिम। इट्स बेस्ड ऑन द पर्सन's परफॉर्मेंस vis-a-vis to the role which has been given to him. So you got to be very factual. You got to be a judge there, जो सबूत के बेस पे डिसीजन लेगा। And that's a very important part which you have to play there. The point is, I think we are, one of the comments is, I think we are in non-action because we are too scared to alter the status quo. It is just like, जैसे चल रहा है ठीक है। Absolutely. हम लोग को ऐसा डर सा लगता है, हम लोग को ऐसा, we feel that somewhere कि अगर चेंज से हम घबराते हैं कि यार अभी चल रहा है ना, ठीक कर लेगा ना काम, ठीक है ना, सुधर जाएगा ना, हम अपने आप को बहलाते हैं। एंड आई एम सेइंग दैट पीपल आर योर बिगेस्ट एसेट्स। ये धारणा गलत है। राइट पीपल आर द बिगेस्ट एसेट्स, रॉन्ग पीपल आर द बिगेस्ट लाइबिलिटीज। तो आप लाइबिलिटी को लेके क्यों चलना चाहते हो? सो इफ यू थिंक दैट पर्सन इज नॉट इन द राइट प्लेस, चेंज द प्लेस। इफ यू थिंक दैट पर्सन इज नॉट the right person for the bus, for your vehicle, usko जाने को बोलो। Second discipline. Third discipline,
ये सीनियर लीडरशिप के ऊपर है कि आप अपने सबसे अच्छे टैलेंट को अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पे लगाओ। आप अपने सबसे अच्छे टैलेंट को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पे लगाओ कि आपके पास जो सबसे बढ़िया इंसान है, जिसका सबसे अच्छा काबिलियत है, उसको सबसे अच्छे मौके पे लगाओ ना। हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में हमारी सबसे अच्छी जो टैलेंट है उसको हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे लगा देते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर। एंड दिस इज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट गैलप, डज नॉट मूव फॉरवर्ड। तो हमारे यहाँ सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में ऐसा हो सकता है कि कोई एंटरप्रेन्योर की कंपनी में एक कस्टमर का कोई चैलेंज आ गया कि कस्टमर जो है वो नाराज हो गया, कस्टमर जो है अपसेट हो गया। तो क्या करता है एंटरप्रेन्योर, या सबसे अच्छा टैलेंट को उठा के वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देता है। अब वो टैलेंट जो है वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व में लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छे टैलेंट को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में लगा के रखो, सबसे अच्छे टैलेंट को। क्योंकि अगर एक बड़ा मौका आपने पकड़ लिया उस टैलेंट की वजह से, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और वो प्रॉब्लम जो है वो जो सॉल्व करनी है वो तो सॉल्व करनी ही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है। बट क्या होता है, प्रॉब्लम कभी कभी हमें इतनी बड़ी लगती है स्टार्टिंग में, तो हमें लगता है यार नहीं ना ना, सबसे अच्छा आदमी कौन है सॉल्व करने वाला, उसको हम लगा देते हैं। कोई और इंसान है, उसको अगर हम गाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दे, तो वो इंसान भी अच्छा बन जाता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, हमारा टैलेंट भी सही जगह पर लगा रहता है और ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ जाती है। सो एनी प्रॉब्लम विच यू फेस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी एट अ लोअर लेवल टू बिकम बेटर। हमने उस लोअर लेवल के इंसान को उठा के इंस्पायर करके मोटिवेट करके उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाना है, जिससे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले और वो भी अच्छा बन जाए, और हमारा जो बेस्ट टैलेंट है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में लगा रहे और कंपनी को आगे लेके जाए। 3 डिसिप्लिन, बड़े सिंपल डिसिप्लिन हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन हैं इन रिलेशन टू लीडरशिप, कि एज अ लीडर आपने इन एरियाज पे बहुत रिगरसली ध्यान देना है और सोचना है। So that is what I thought of sharing with you today on the people side of business, कि एज अ लीडर आपको रिगरस होना है, आपको कठोर होना है, आपको बेरहम नहीं होना है। तो आपको कठोर होना है लेकिन आपको नरम भी नहीं होना है। अक्सर लीडर नरम हो जाता है या फिर बहुत ही बेरहम हो जाता है, या तो इस साइड होता है या फिर इस साइड होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, ना इस साइड जाना है, ना हमने नरमी से काम करना है बिल्कुल ही कि कोई हम पे हावी हो जाए, हमें वैसा नहीं बनना है। ना ही हमें बेरहम बनना है, क्रूर बनना है कि हम जाके हम बिल्कुल रूथलेस बन जाएं, ऐसा नहीं। हम कठोर बनेंगे, सख्त बनेंगे, टफ बनेंगे। और टफनेस का मतलब ये नहीं कि हम अपनी लैंग्वेज को हम गलत करेंगे। टफ का मतलब है स्ट्रांग, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टफ लीडर्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्ट्रांग लीडर्स। एंड स्ट्रांग लीडर्स की सबसे बड़ी पहचान है कि वो लोगों के संदर्भ में क्या डिसीजंस लेते हैं। उन डिसीजंस के लिए मैंने आपसे बात करी है, 3 एरियाज में आप डिसिप्लिन रहिए। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड दिस मेक्स यू much more powerful as entrepreneurs and as leaders. ठीक है? So keep on sharing the channel details with with as many people as you can. This is a part of अरस समस्ती, जो हमारा एक बड़ा अच्छा बिजनेस प्रोग्राम है जो हम लेते हैं, एंड उसके कुछ स्निपेट्स हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ. Though the program is much more in depth, we will go deeper into these subjects, but I just thought let me share this with you. शायद ये आपके काम आ जाए और आपको कहीं हेल्प करे कि आप जब हायरिंग में हो या आप लोगों के बारे में डिसीजन ले रहे हो, तो शायद ये 3 डिसिप्लिन्स आपकी हेल्प करें. So can you elaborate on the third one a bit? The third one, when we say you put your best talent, right, in the biggest opportunities. So you have your opportunities around you. For example, ऐसा हो सकता है किशोर that you have your you are now making your second shed which is there, right? You are making your another factory shed for yourself. ऐसा हो सकता है कि उस फैक्ट्री शेड में जो है काम करते करते, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि काम करते करते कोई चैलेंज आ जाए कि कोई गवर्नमेंट का कोई नॉर्म आपने मीट नहीं किया है, एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं वहाँ के
from the corporation or from the area, and they say stall the work for the construction of your factory. ऐसा अगर वो आके बोलते हैं तो आप क्या करते हो? आप नहीं हो, you're outside, and then you call up one of your biggest talents there. Maybe that person is the production head of your current unit, और आप क्योंकि you know that this guy is capable, तो आप कहते हो यार तू जाके जरा देख ये कॉर्पोरेशन में क्या प्रॉब्लम है, and you get the whole thing solved. So the biggest, the best talent of yours which is there, उसको वहां से निकाल दिया आपने, और आपने इसको यहाँ सॉल्व करने में लगा दिया कि जा तू ये सॉल्व कर, मुझे ये I have to get the shed up and running. Now वो जो अपॉर्चुनिटी है where the export order is waiting, and the European market is opened up and your export orders have to go there, तो वो काम छोड़ के वो बंदा जो है अभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया. That is what many times as leaders we do. वो काम कर रहा था आपके सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी पे, उसको वही करने दो काम. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए have somebody else. I'm not saying don't solve this. Because when we say that अगर आपको great बनना है, you don't become great by solving problems. You become great by grabbing opportunities. By solving problems, you remain good. And that is important, that you remain good for you to become great. But by solving problems, you don't become great. You become great only by moving ahead. So the biggest and the best talent of yours should only be focused on the opportunities. This problem can be handled by somebody who can be developed over a period of time. So all the best to you, and I'll catch you next week with another MG Live, and do share with your friends, share with all your loved ones about this channel. It's a new channel which we have started, and I need to have more people subscribing to this channel and more people coming to this live on YouTube. And just sharing a few snippets from my programs, whichever I conduct on business side. ये उसका एक छोटा सा snippet था. So all the best to all of you. God bless you. Stay blessed, and do give us the feedback, and do share with us your insights on what you have picked up from today. Love you all. Take charge of your lives.